Next we'll discuss question number 5. The velocity at the maximum height of a projectile is half its initial velocity of projection. Its range on the horizontal plane is. So the velocity at the maximum height, कोई भी projectile की maximum height पे velocity किसके बराबर होती है? u cos theta के बराबर होती है, ठीक है? So u cos theta is equal to the velocity at the maximum height. This is velocity at maximum height, at height h suppose, ठीक है? So u cos theta is half its initial velocity of projection u. So it is given that u cos theta is equal to u by 2. So cos theta is equal to half and theta comes out to be how much? 60 degree, ठीक है? So its range on the horizontal plane is, तो उसकी range क्या होगी? Range कितनी होती है? Range is u square sin 2 theta by g. So it will be u square by g sin 2 theta. Sin 2 theta means sin 120 degree. Sin 120 degree क्या होता है? Root 3 by 2. So it will be root 3 by 2 u square by g. Okay. So option number A is correct. Next question number 6. An aeroplane is flying at a constant horizontal velocity of 600 km per hour at an elevation of 6 km towards a point directly above a target lying on the earth's surface. इसका मतलब this aeroplane is flying with a velocity of 600 km per hour, ठीक है, at the elevation of 6 km from the ground. ग्राउंड से 6 किलोमीटर ऊपर ये जो एरोप्लेन है ये 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, टुवर्ड्स अ पॉइंट डायरेक्टली अबव अ टारगेट लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस. सपोज ये कोई टारगेट है जो अर्थ सरफेस में है, तो इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है ये यहाँ जा रही है, ठीक है, it's going like that. At an appropriate time, the pilot releases a ball so that it strikes the target at the earth. The ball will appear to be falling. देखो, अगर पायलट इस एरोप्लेन से एक बॉल रिलीज करता है, इस एरोप्लेन से कोई भी पार्टिकल डिटैच होता है या कोई भी बॉल रिलीज करता है, तो उस बॉल का मोशन कैसा होगा? जब वो रिलीज करेगा तो उस बॉल की भी इनिशियल स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी स्पीड 0 होगी, बट वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा g के बराबर, तो उसका मोशन कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, जहाँ पे टारगेट है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि वो ऐसे बॉल इतने डिस्टेंस में बॉल को फेंकता है सो दैट इट रीचेस द ग्राउंड एंड मीट द टारगेट. मतलब इसके पहले यहाँ कहीं उसने फेंका, तो यहाँ से बॉल रिलीज किया उसने, यहाँ से बॉल रिलीज किया एंड देन इट वेंट लाइक दैट, ठीक है. सो यू नीड टू एनालाइज द मोशन ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड ऑब्जर्वर एंड एज सीन फ्रॉम द पायलट. सो ऑप्शन ए इज on a parabolic path as seen by the pilot in the plane. No, as seen by the pilot in the plane. पायलट को क्या दिखेगा जब बॉल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फाइनली यहाँ है, तब पायलट की हॉरिजॉन्टल स्पीड भी तो उतनी ही है और जितनी बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड है, तो पायलट को तो हमेशा यही दिखेगा कि बॉल हमेशा उसके नीचे, पायलट को हमेशा बॉल उसके नीचे ही दिखेगी. तो as seen from pilot, the trajectory of the ball is vertically downward. So A option will be incorrect. Option B, critically along a straight path as seen by an observer on ground near the target. As seen by observer on the ground near the target. Ball तो ऐसी आ रही है, तो option B भी incorrect हुआ. Then option C,
on a parabolic path as seen by an observer on the ground near the target. Yeah, it will be a parabolic path. ये parabolic path ही है, तो इसको भी parabolic path ही दिखेगा, ठीक है. तो option C is correct. On a zigzag path as seen by the pilot in the aeroplane. No, as seen by the pilot, it will be a straight line, vertically downward. So the option C is correct. Option C is correct. It will be a parabolic path as seen by the observer on the ground. Okay. Next we'll discuss question number 7. If the range of a gun which fires a shell with muzzle speed v is r, then the angle of elevation of the gun is. Initial velocity v दे रखी है और range है r. So we know that range is equal to u square sin 2 theta by g. Right? U is given to be how much? V. So r is v square sin 2 theta by g. Sin 2 theta is equal to r g by v square. Okay. So sin 2 theta. So 2 theta will be equal to how much? Sin inverse of rg by v square. So theta will be equal to half of sin inverse of rg by v square. Okay, so it will be option number D. Option number D. ठीक है. Next is question number 8. A ball is thrown vertically upward from the top of a tower with a speed v. It reaches the foot of the tower in time t1. A ball is thrown vertically. Suppose this is the height of a tower from the ground. Let's suppose it is h. So a ball is thrown vertically upward from the top of a tower with speed v. It reaches the foot of the tower in time t1. इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड v से और ये ऊपर से जाके नीचे आई और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट था इट इज कैलकुलेटेड टू बी t1. ठीक है. If the same ball is thrown vertically downward from the top of the tower with speed v, then it reaches the foot of the tower in time t2. अगर सेम हाइट से इसे नीचे की तरफ v वेलोसिटी से फेंका जाता है तो इसे नीचे पहुंचने में जो टाइम लगता है that is calculated to be t2. The time taken by the same ball to reach the foot of the tower if it is merely dropped from the top of the tower is. इसका मतलब कि अगर इसे ड्रॉप किया जाता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो से नीचे सिर्फ ड्रॉप किया जाता है तो द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज कैलकुलेटेड टू बी t. So you need to find the value of t in terms of t1 and t2. Okay. So what would you do? सबसे पहले t1 कैलकुलेट करते हैं. t1 में कितना, देखो जितना टाइम इसे यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, दिस इज ये एक लाइन, देखो t1 के लिए देखो इसका पाथ ऐसा है. जितना टाइम सपोज इसे यहाँ से यहाँ जाने में कुछ t0 टाइम लगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में सेम हाइट लौटने में भी उसे t0 टाइम लगेगा. ठीक है. और यहाँ से यहाँ आने में सपोज t डैश टाइम लगा तो t1 कितना हो जाएगा 2t0 प्लस t डैश, है ना. t1 इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, 2t0 प्लस t डैश. तो t0 पहले कैलकुलेट करेंगे. इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है v, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, एक्सेलरेशन है -g. सो एंड डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है टाइम. v is equal to u plus at. So t will be equal to final velocity 0 minus initial velocity v divided by minus g. So t naught is v by g. t naught is v by g. तो ये भी v by g होगा. तो 2t naught
2t0 कितना हो जाएगा 2v/g, t1 विल बी 2t0 प्लस t1। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? देखो जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा और ये वापस आएगा तब भी इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी v होगी, ठीक है। इसे v से इसे ऊपर फेंका गया तो इसकी नीचे की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो v ही होगी। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? इनिशियल वेलोसिटी विल बी v, डिस्टेंस इज h and acceleration is g. So h is equal to ut, that is vt plus half at square, this is g. So t will be half gt square plus vt minus h is equal to 0. So t will be minus v plus minus under root of v square minus 4ag. V square minus will be plus 4ag, that is 2gh. 4ag 2gh के बराबर हो जाएगा, v square plus 4ag. So it will be 2gh divided by 2a, that is divided by g, right? So t will be t dash will be, क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है? नहीं, तो फर्स्ट वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो अगर हम इसे, ये माइनस है, अगर इसकी दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशंस आते हैं, एक सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा और एक सॉल्यूशन नेगेटिव होगा। नाउ सिंस वी आर कैलकुलेटिंग इट फॉर टाइम इज नॉट नेगेटिव, सो द पॉजिटिव सॉल्यूशन विल बी कंसिडर्ड एंड दैट विल बी अंडर रूट ऑफ v square plus 2gh minus v divided by g. This will be the solution. So T1 will be 2v by g plus under root of v square plus 2gh minus v by g. ठीक है, ये T1 की वैल्यू होगी। अब T2 कैलकुलेट करना है। T2 क्या होगा? देखो T2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी v, डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज h एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। पूरा इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो T2 T डैश के बराबर हो जाएगा। T2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh माइनस v डिवाइडेड बाय g। नाउ T कितना होगा? T कैलकुलेट करना है। T विल बी इक्वल टू हाउ मच? इनिशियल वेलोसिटी 0, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, तो h इज इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ at स्क्वायर gt स्क्वायर। सो T विल बी अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। T किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 2h बाय g। नाउ T1 की वैल्यू देखो, T1 किसके बराबर है? 2v बाय जी प्लस दिस वैल्यू। T1 विल बी इक्वल टू 2v बाय जी प्लस दिस वैल्यू। ये वैल्यू T2 के बराबर है, तो T1 इज इक्वल टू 2v बाय जी प्लस T2, ठीक है। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2v बाय जी। T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू 2v बाय जी। Now t square is equal to 2h by g. T square is equal to 2h by g and T2 is equal to this much. On squaring both sides, दोनों का स्क्वायर करो, you will get, this is equation number 1, ठीक है। T2 is equal to T2 का स्क्वायर, T2 स्क्वायर is equal to T2 स्क्वायर is equal to V स्क्वायर प्लस T2 माइनस T2 इंटू G प्लस V। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। G को यहाँ पे ले आए, T2G
plus v is equal to under root of v square plus 2gh. On squaring both sides, we get t2 square g square plus v square plus 2t2 gv is equal to v square plus 2gh. ठीक है, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल, we get t2 square into g is equal to 2h minus 2v into t2. So t2 square is equal to 2h by g minus 2t2 v by g. ठीक है, नाउ 2h by g इज हाउ मच, t स्क्वायर. 2h by g जो है वो t स्क्वायर के बराबर है फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो आई एम रबिंग दिस पार्ट. t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h by g. एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ. एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है, एक है t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 2v बाई जी. एक ये इक्वेशन है. अभी हमारे पास क्या इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3. दिस इक्वेशन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी माइनस 2t2 v बाई जी. तो t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी किसके बराबर है, t स्क्वायर, रिप्लेस कर दो t स्क्वायर, और माइनस t2, 2 इंटू वी बाई जी किसके बराबर है, t1 माइनस t2 के बराबर है. तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2. ठीक है, तो t2 स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2 स्क्वायर. t2 स्क्वायर कैंसिल, t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 t2. So t will be equal to under root of t1 into t2. Okay, so your answer will be option number C. Option number C, t1 t2. ठीक है, समझ में आया हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या किया. नेक्स्ट we'll discuss question number 9. Two particles are projected simultaneously from 2 points O and O dash such that 10 meter is the horizontal distance between them and 5 meter is the vertical distance as shown in the figure. They are projected at the same inclination 60 degree to the horizontal with the same velocity, that is 10 meter per second. The time after which their separation becomes minimum. So this is a point O, and 5 meter below this point, and at a distance of 10 meter. This is a point O dash. ठीक है, तो let us assume कि ये origin है 0,0 and this is xy plane. This is x axis and this is y axis. ठीक है, हमने क्या किया, we have assumed that this is xy plane, this is x axis and that is y axis and this is origin. So if this is origin, this point will be how much, this is 5 meter above the origin, this point would be 0,5. ठीक है, और ये पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, 10,0 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, नाउ पॉइंट फर्स्ट बॉल is released from this point with initial speed of 10 meter per second, making an angle of 60 degree with the horizontal. And the second ball is released this way 10 meter per second
making an angle of 60 degree with the horizontal. At t equal to 0, they both are released simultaneously. So you need to calculate the minimum distance between them during their trajectory. So to calculate the minimum distance, पहले तो क्या करेंगे हम? पहले तो हम distance calculate करेंगे दोनों के बीच का. तो किसी भी time t पे, let's say at any time t, what is the position of the ball? सबसे पहले हम position calculate कर लेंगे. तो this is ball B1 and this is ball B2. So at any time t, position of ball B1, B की इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? देखो B की अगर हम इनिशियल स्पीड देखें, सो दिस इज 10 cos 60 डिग्री, 10 cos थीटा बोल लो, ऊपर की तरफ 10 sin थीटा. सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 10 cos थीटा I कैप 10 cos थीटा I कैप प्लस 10 sin थीटा j कैप. ये इनिशियल वेलोसिटी होगी. ठीक है. आफ्टर टाइम t, टाइम इज t, आफ्टर एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज g डाउनवर्ड्स, सो एक्सेलरेशन वुड बी माइनस g j कैप. ओके. एंड डिस्प्लेसमेंट इज सपोज फाइनली वो कहीं यहाँ पे है x1, y1 पॉइंट में. फाइनली वो x1, y1 पॉइंट में, और इनिशियली किस पॉइंट में थी? 0,5 में थी. ठीक है. मान लेते हैं फाइनली वो यहाँ कहीं है एट टाइम t. At time t, suppose the ball B1 is at a point x1, y1. So the displacement till then will be equal to how much? x1 minus 0 I cap plus y1 minus 5 j cap. This would be the displacement. Okay. So we know that S is equal to ut plus half at square. So S is how much? x1 I cap plus y1 minus 5 j cap will be equal to ut, u cos theta t I cap plus 10 sin theta t. This is 10 cos theta t I cap plus 10 sin theta t j cap ut plus half at square. That would be minus half gt square j cap. ठीक है. किसी भी टाइम पे उसकी इक्वेशन ये होगी. तो x1 is equal to at time t, x1 will be equal to I cap और I cap को एक साथ कर दो. x1 हो जाएगा 10 cos थीटा. ठीक है. 10 cos थीटा t और y1 माइनस 5 किसके बराबर आ जाएगा? j कैप. वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेट कर दो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वेट कर दो. y1 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 10 sin थीटा t, 10 sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर. ठीक है. ये हमको मिल गया B1 के कोऑर्डिनेट्स एट एनी टाइम t. We got the coordinates of B1 at B1 any time t. So this will be x1 equal to 10 cos theta t and y1 is equal to 5 plus 10 sin theta minus half gt square. ठीक है. These are the coordinates for B1 at any time t. Now similarly we will calculate the coordinates of B2 at any time t. So should I rub this part? Okay.
this is 10 comma 0, this is 0 comma 0. So now we will calculate coordinates of B2. At any time t, coordinates of B2. टाइम दोनों का सेम लेंगे, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 cos थीटा और ऊपर की तरफ 10 sin थीटा. सो इट विल बी -10 cos थीटा आई कैप प्लस 10 sin थीटा j कैप. एक्सेलरेशन विल बी -g j कैप एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी, सपोज ये किसी फाइनल पॉइंट यहाँ पे होती है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी x2 माइनस 10, इसके कोऑर्डिनेट्स 10, 0 है, x2 माइनस 10 आई कैप प्लस y2 माइनस 0 j कैप. ठीक है, y2 माइनस 0 j कैप. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे. सो we'll get x2 माइनस 10 आई कैप प्लस y2 j कैप इज इक्वल टू ut माइनस 10 cos थीटा t आई कैप प्लस 10 sin थीटा t j कैप माइनस हाफ GT स्क्वायर j कैप. ठीक है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ x2 के लिए आई कैप और आई कैप को इक्वेट करेंगे तो विल गेट 10 माइनस 10 cos थीटा t. ठीक है, x2 विल बी इक्वल टू 10 माइनस 10 cos थीटा t एंड y2 विल बी इक्वल टू 10 sin थीटा t प्लस हाफ GT स्क्वायर माइनस हाफ GT स्क्वायर. ठीक है, नाउ एट एनी टाइम t, B1 के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और B2 के कोऑर्डिनेट है x2, y2. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल्स एट टाइम t. सो x1 इज इक्वल टू हाउ मच? सबसे पहले कैलकुलेट x1 माइनस x2. x1 माइनस x2 विल बी, x1 इज 10 cos थीटा t, 10 cos थीटा t माइनस x2 इज 10 प्लस 10 cos थीटा t. ये हो जाएगा -10 माइनस 10 cos थीटा t, तो -10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 प्लस 10 cos थीटा t. राइट, -10 प्लस 10 cos थीटा t. तो x1 माइनस x2 जो है वो आ जाएगा 20 cos थीटा t माइनस 10, ये आ जाएगा. सिमिलरली y1 माइनस y2 कैलकुलेट करो. y1 माइनस y2 कितना आ जाएगा? 5 प्लस 10 sin थीटा t, 5 प्लस 10 sin थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर माइनस 10 sin थीटा t प्लस हाफ GT स्क्वायर. कैंसिल y1 माइनस y2 विल बी इक्वल टू 5. So under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square distance. This will be equal to how much?
20 minus 20 cos theta t minus 10 whole square plus 5 whole square. So this will be under root of 400 plus 400 cos square theta t square plus 100 minus 400 है ना, 400 cos theta t plus 25. So this comes out to be under root of 100 plus 25 will be 125 plus 400 cos square theta t square minus 400 cos theta t. ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा. एट एनी टाइम डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस. सो वी नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, राइट. तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ds बाय dt शुड बी इक्वल टू 0. ds बाय dt को 0 करेंगे, तो ds बाय dt को 0 करने में विल गेट, डिफ्रेंशिएट करो इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस होल क्वांटिटी इनटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. देखो 1/x का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x इंटू dx बाई dt, ये डिफ्रेंशिएशन होता है. तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस होल क्वांटिटी इनटू इसका ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसका डिफ्रेंशिएशन. तो 120 का तो 0 हो जाएगा, वो हो जाएगा 800 विथ रिस्पेक्ट टू t हमें डिफ्रेंशिएट करना है. सो दिस विल बी 2 इंटू 400, 800 cos square theta इंटू t, 800 cos square theta इंटू t माइनस 400 cos theta. ठीक है, इसको 0 से इक्वेट करो तो यू विल गेट 800 cos square theta t इक्वल टू 400 cos theta. ठीक है, स्क्वायर थीटा ये कैंसिल, सो t विल बी इक्वल टू 1/2 cos theta. t will be equal to 1/2 cos theta. In order to get the minimum value of time, ये मैक्सिमम होना चाहिए. So t will be equal to 1/2 cos theta. तो cos theta की वैल्यू कितनी है, 2 cos theta, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री. तो 60 डिग्री को cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ. So it will be half, 2 cancel, so t will be equal to 1 second. Okay, t will be equal to how much, 1 second.